Yeah, done. Hello everyone, welcome to Shantman Hospital. On the account of celebrating World Mental Health Day 2024, we at Shantman Hospital have come up with an interesting lineup of special interviews focusing on various mental health issues faced by our society. We at Shantman are dedicated to cater to the psychological, emotional, and social needs of people. Our aim is to create awareness regarding various mental health issues and to break the stigma that the field of mental health carries around with itself. I am Tavleen Korkalsi, psychologist, adolescent counselor, and suicide prevention counselor at Shantman Hospital. I'm delighted to welcome you all to this interview where we talk about various mental health issues that women go through. Before proceeding further, I would like to introduce our interviewer for this segment. We have with us Dr. Jeet Nathpara. Dr. Jeet is a neuropsychiatrist, addiction psychiatrist, adolescent and child psychiatrist, and a sexologist. He is the founder of Shantman Hospital and has an extensive experience of 9 years in the field. He has presented various papers, posters, and publications in national and international journals in the field of psychiatry and has conducted various public lectures in Daman, Padi, Valsad, and Vapi. Sir, it's a delight to have you here among us. Thank you, Tavleen. Today's topic entails a discussion which focuses on issues related to women's mental health. What issues women generally go through, and what is the stigma that are surrounding these issues? To give us an extensive insight regarding women's mental health, I am honored to introduce our guest for today, Dr. Abha Bang Soni. Dr. Abha is a psychiatrist and a certified perinatal mental health expert. She is a consulting psychiatrist and director of Brahma Hospital and Asan Hospital in Nagpur and has an extensive experience of 15 years in the field. She is the Joint Secretary of Psychiatry Society Nagpur and is also the president of Youth Wing at the Association of Medical Women in Nagpur. She is the secretary of Nagpur Ladies Circle 50 and is a speaker at multiple academic and non-academic forums and in various conferences and presentations on a national and an international level. Ma'am, it's an honor to have you here among us today. We look forward to gain much more insight in the area of women's mental health. Thank you so much, Tanveen, for that lovely introduction. Yeah, thank you so much, Abha ma'am, for joining us today. Abha ma'am is a mentor to me, a guide to me. Thank you so much, ma'am, for joining. So let's begin with the session now. Ma'am, we'll keep the session in Hindi so that common people can understand more about the things. Bilkul, bilkul. Yeah. So coming to the questions regarding women mental health, तो ऐसी क्या क्या challenges होती है महिलाओं के जीवन में जो उनको मजबूरन फेस करनी पड़ती है और कभी कभी उसकी वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी मानसिक समस्या के लिए हम लोग कहते हैं कि हम एक बायो साइको सोशल मॉडल के ऊपर काम करते हैं। बायो का मतलब होता है हमारी बायोलॉजी, जो शारीरिक हमारा बनावट है, मेकअप है, उसके ऊपर। तो औरतें, फीमेल्स जो है, पहले से ही बचपन से जिस तरह से उनका शरीर और हार्मोन्स डेवलप होते हैं, वो ज्यादा प्रोन होते हैं अलग अलग समय में अपने जीवन के अलग अलग मानसिक समस्याओं से जूझने के लिए। जैसे कि जब पहली बार उनके मानसिक हम जो बोलते हैं मासिक पाली चालू होती है, उस समय भी काफी हार्मोनल बदलाव होता है, जिसके कारण उन्हें मानसिक समस्याएं हो सकती है। उसके बाद जीवन भर हर महीने में जब वो उसके थ्रू गुजरती हैं, तब भी वो ज्यादा मानसिक समस्या से जूझ सकती है। फिर गर्भावस्था या प्रेगनेंसी एक मेजर पीरियड है जहाँ पे फिजिकल, मेंटल एज वेल एज हार्मोनल इतने सारे बदलाव आते हैं कि अगेन उस समय में हमें ज्यादा महिलाएं सामने आती हैं मानसिक समस्याएं लेके। और फिर जब ये मासिक पाली खत्म हो जाती है, यानी एक वृद्ध अवस्था के स्थिति में बोलेंगे 55-60 के पास में, जब वो खत्म हो जाती है, खत्म होने आती है, तब फिर से हार्मोनल बदलाव आते हैं। तो उसके कारण हम काफी सारे ये देख सकते हैं। वो एक हो गया बायोलॉजिकल। दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल। हमें मालूम है कि बचपन से ही हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों को अलग तरीके से बड़ा किया जाता है, अलग तरीके से देखा जाता है, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं
और उनसे अपेक्षा भी अलग अलग होती है। तो एक जो हमारा पहले से लेबल हम बोलते हैं लग जाता है लड़कियों को कि उन्होंने ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए, और उस कारण से कुछ कुछ रोक टोक जो होता है या कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जो उनके ऊपर डाली जाती है, उसके कारण भी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। और उनका जो एक नेचर रहता है कि वो बहुत जल्दी दूसरों का दर्द अपना बना लेती है, थोड़ी सेंसिटिव होती है बाय नेचर यूजुअली। तो उसके कारण भी कोई भी आसपास में जब परिवार वाले अगर परेशानी में हो तो उसका इफेक्ट भी उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा आता है आदमियों के मुकाबले। और हमने देखा है कि स्टडीज ने ऐसा बताया, रिसर्च ने, कि औरतें यूजुअली ज्यादा लंबे जीती हैं आदमियों से। तो एक उम्र के बाद जब बच्चे बड़े होके चले जाते हैं और हमारा कंपेनियन भी छूट जाता है, तो उस समय वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है अकेले जिंदगी जीवन व्यवहार करने का, वो अगेन एड ऑन करता है स्ट्रेस को। एंड अगर सोशल लेवल पे मैं बोलूँ तो सोशल लेवल पर भी बहुत सारे उनके ऊपर चेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसा मैंने बोला, वर्क लाइफ बैलेंस करना, तो ऐसी कई सारी अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको ज्यादा प्रोन बनाती हैं फॉर हैविंग अलग अलग मेंटल इलनेसेस। करेक्ट मैम। मैम आपने जैसे बताया कि महावारी के वक्त होती है कुछ परेशानियां, प्रेगनेंसी में कुछ अलग परेशानियां होती है, और जब मेनोपॉजल एज आती है, जब महावारी बंद हो जाती है, वहां पे भी कुछ अलग परेशानी होते हैं। तो इसके बारे में विस्तार में आप कुछ बता सकते हैं? तो जैसा कई लोगों ने सुना होगा, हमारे माइंड में और बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स और केमिकल्स काम करते हैं। महिलाओं में ये सारा ही मासिक पाली, प्रेगनेंसी और महामारी बंद होने का खेल दो मेजर केमिकल से होता है, जिसे हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। दोनों का अपना अपना काम है, दोनों ही हमें मतलब औरतों को हमारे स्किन, हमारी हेयर, हमारा आकार, हमारे अंदर जो अंडे निकलने वाले हैं हमारे ओवरीज में, जिनके आगे जाके बच्चे होने में मदद होती है, ये सबके लिए कारगर होते हैं। तो जब मासिक पाली आती है तो यूजुअली एक साइक्लिकल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का अप और डाउन होता है। नॉट डिपेंडिंग हर एक इंडिविजुअल पे, हम सबकी अलग अलग उसके लिए ससेप्टेबिलिटी होती है। कोई औरतें ये चेंजेस को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो इसीलिए मासिक पाली आने के पहले यूजुअली एक हफ्ते पहले से कई बार थोड़ा सा उनमें चिड़चिड़ापन आ जाना, छोटी छोटी बात पे रोना धोना जैसे लग जाना, या बहुत लो मूड होना, सडनली मूड चेंजेस होने दिखना, थोड़ा सा बॉडी में ब्लोटिंग जैसा फील होना, किसी किसी महिलाओं को ब्रेस्ट में पेन होना, ये सारे सिम्टम्स को हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये उसका नया नाम है, पहले उसको पीएमएस के नाम से जाना जाता था। पीएमएस एक मोर माइल्डर टर्म है उसी का, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो अधिकतर 50-60% महिलाएं उसको एक्सपीरियंस करती हैं। बट अभी कुछ सालों से, पिछले 3-4 सालों से, हम एक नया एंटिटी हमने साइकेट्री में इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि रिसर्च ने बताया कि इनमें से 1 या 2% महिलाओं को ये तकलीफ इतनी सीवियर होती है कि उसको हम क्लिनिकली डिप्रेशन जितना ही सीवियर मान सकते हैं, उसमें फंक्शनिंग उनकी अफेक्ट हो जाती है, और उसे हम कहते हैं पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। और ये हार्मोनल चेंजेस से होती है, और ऑटोमेटिकली जब पीरियड चालू हो जाता है, मासिक पाली चालू हो जाती है, तो ये सिम्टम्स अपने आप रेमिट हो जाते हैं। पर वो एक हफ्ता हर महीने में बार बार इतना तकलीफदायक जाता है मरीज के लिए भी और परिवार वालों के लिए भी, कि इसके ऊपर हमें इलाज करना जरूरी हो जाता है। तो ये एक हो गया। दूसरा, प्रेगनेंसी के समय में, प्रेगनेंसी ये पूरा 9 महीने का पीरियड है, पर इसके पहले, ड्यूरिंग दैट 9 मंथ्स और उसके बाद का 1 साल, ये पूरा ही पीरियड लेडीज के लिए बहुत वल्नरेबल होता है। क्योंकि कई बार जब प्रेगनेंसी का प्लान्ड अगर प्रेगनेंसी हो, तो फिर वो जो एंजाइटी रहती है उसके अराउंड की कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, और इस साइकिल में होगा कि नहीं, साइकिल थोड़ी आगे पीछे तो नहीं होगी, ऑल ऑफ दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी, घबराहट, चिंता बहुत होती है इसके बारे में। प्लस ये बात कि हमारे होने वाले बच्चे की तबीयत अच्छी होनी चाहिए, वो हष्ट पुष्ट होना चाहिए, इस बात की भी चिंताओं के कारण थोड़े चेंजेस होते हैं। और जब प्रेगनेंसी एक्चुअली हो जाती है, तो प्रेगनेंसी एक हाई प्रोजेस्टेरॉन स्टेट हम कहते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारा मूड थोड़ा लो करता है।
ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो थोड़ा हमें हैप्पी रखता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हमारा एज एन एंटी डिप्रेसेंट अगर कोई ले रहा है या ये, तो उसका एक्शन कम कर देता है, क्योंकि वो बेसिकली हर चीज को थोड़ा सा गाबा का एक्शन बढ़ाता है, हमारे एक और केमिकल का, जिसके कारण ब्रेन में हमारे मूड्स थोड़ा लो हो जाता है, अगेन थोड़ा जल्दी घबरा जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, नींद में दिक्कतें आने लगती हैं। और जो फिजिकल चेंजेस भी हम 9 महीने में देखते हैं उसके कारण भी, जैसे जब वजन बढ़ जाता है, हमारे ब्लैडर मूवमेंट ये हो जाता है, तो नींद वगैरह अफेक्ट होती है, अगेन उससे चिड़चिड़ापन और मूड डिस्टर्बेंस आ सकता है। और डिलीवरी के बाद जैसे डिलीवरी हो जाती है तो ऑलमोस्ट 40% पेशेंट्स में हम देखते हैं कि पोस्ट डिलीवरी जो सडन डिप होता है प्रोजेस्टेरॉन में और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स भी बढ़ते हैं क्योंकि हमें मिल्क सिक्रेशन करवाना है बॉडी में, तो उसके कारण हमारे महिलाओं में अलग अलग मानसिक समस्याएं, जैसे कि अगर माइल्डर फॉर्म में बोलूं तो पोस्टपार्टम ब्लूज। ब्लूज का मतलब होता है बहुत ही माइल्ड लेवल पे लो मूड लगना, डिप्रेशन लगना, ऐसा लगना कि मैं अच्छे से माँ का दायित्व निभा पाऊंगी या नहीं, मैं बच्चे को संभाल पाऊंगी या नहीं, खुद के ऊपर डाउट होना। सेकेंड होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उससे थोड़ा सीवियर फॉर्म, जहाँ पे पूरी तरह नेगेटिव फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि ये मैं कर ही नहीं सकती, कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाता है, और बच्चे को अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पाते हैं, दूध आ भी रहा है, बच्चा कोई भी चीज के लिए रो रहा है तो माँ को गिल्टी बहुत फील होता है। कई बार इसमें अगर ज्यादा सीवियर हो तो उनको आत्महत्या के विचार भी मरीजों में देखने मिल सकते हैं इसमें। एंड देन इससे भी एक सीवियर स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टमार्टम साइकोसिस में डिप्रेशन के अलावा केमिकल चेंजेस के कारण कई बार महिलाओं को ऐसी चीजें अनुभव होती हैं जो बाकी लोग नहीं अनुभव कर पाते हैं और जो वास्तविकता में नहीं होती। ऐसे कई बार उन्हें कान में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देंगी या ऐसे कोई विचार मन में आएंगे जो काफी शक भरे हो सकते हैं, जिसमें उन्हें बहुत डर लगने लगता है, ऐसा लगता है कि सारे लोग हमारे खिलाफ है, लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। और कई बार ये नेगेटिविटी बच्चों की तरफ भी आ जाती है, जो छोटा शिशु होता है, कि इनके कारण सब हो रहा है, या लोग हम सबको मार डालेंगे इसके कारण, या इसको कोई मार डालेगा, तो या तो वो ओवर पोजेसिव हो जाते हैं बच्चे को लेके, किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, या फिर कई बार कुछ रेयर केसेस में हमने देखा है कि वही बच्चों को हानि पहुंचाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बच्चे के कारण ही सब हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने देखा है कि हार्मोनल गड़बड़ी के कारण, हार्मोनल बदलाव के कारण फीमेल्स में दिखती है, और डिलीवरी के पहले एक हफ्ते में हमें यह ज्यादा कॉमनली मिल सकती है। करेक्ट। उसके बाद जैसा, सॉरी बोलिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो परिवार के जनों को क्या करना चाहिए वो परिस्थिति में? कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो जानबूझ के कर रही है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा, हाँ, तो ये एक सबसे बड़ा मिथ जीत मैं चाहती हूँ, और मैं हर बार हमारे कोई भी प्रोग्राम में मैं बताती हूँ कि ये जो लोगों को लगता है कि मानसिक समस्याएं अगर है मतलब समझ बिगड़ जाएगी या बुद्धि में गड़बड़ी आएगी, ऐसा नहीं है। 90% मरीजों में, जीत आप भी जानते हैं, हमारे 90% मरीजों में बुद्धि को फर्क नहीं पड़ता है ना, सबको पहचानना, काम समझ में आना, दिन रात समझना, पैसे पानी समझना, ये 90% हमारे पेशेंट्स में ठीक रहता है। गड़बड़ होती है या तो भावनाओं को संभालने में, या तो सही क्या है और काल्पनिक क्या है इसके बीच का अंतर वो समझ नहीं पाते हैं, और रिएक्शंस अपने संभाल नहीं पाते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको ऐसी कोई भी बदलाव दिखे जो नेचुरल उनके नेचर से अलग है, हमेशा के उनके बर्ताव से अलग है, या अगर उनकी जो रोजमर्रा का रूटीन है, जैसे नींद है, खाना पीना है, इस चीज में उनके दिक्कत आ रही है, या काम काज जो हमेशा करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि आपने पास के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से जाके मिलना चाहिए, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिले कि ये माइल्डर केस है, काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा, या इसको मेडिकेशन लगेगा, या इतना सीवियर है कि शायद हमको भर्ती करना पड़े। करेक्ट मैम। कभी कभी हमें, हाँ बोलिए ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग रिजेक्ट देते, मतलब दे आर नॉट विलिंग, कि वो आना नहीं चाहते डॉक्टर के पास के। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे अप्रोच करते हैं अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है या कोई ऐसा बताता है कि उनको ऐसा? सही बात है। कई बार क्या हो जाता है कि मरीज खुद नहीं समझ पाते कि जो हमारे साथ हो रहा है ये एक बीमारी है। उनको यकीन होता है कि हम जो भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सब सच्ची बातें हैं, सही में ऐसा होता है। तो ऐसे समय में हमको कई बार जो उनके प्राइमरी फिजिशियन है, यानी जो डॉक्टरों के साथ उनका अच्छा संबंध है, अगर जैसे हम पोस्ट डिलीवरी की बात करें
तो यूजुअली उनके जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ उनका एक अच्छा रैपो होता है। तो हम कई बार फिर गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से, गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू हम उनको दवाइयां देने की कोशिश करते हैं या उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर होगा, डायबिटीज होगा, तो उनको वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भी भेजेंगे कि आपको शुगर का भी ये करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा साथ में। या अगर उनको बीपी की शिकायत होगी तो बीपी और ये दोनों साथ में करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपने को लाइजनिंग करनी पड़ती है प्राइमरी केयर गिवर के साथ। कई बार इनिशियली हमको सिर्फ काउंसलिंग करके मतलब अगर वो अग्री करते हैं तो हम गायनेकोलॉजिस्ट के दवाखाने में या उनके जो जनरल फिजिशियन है उनके हॉस्पिटल में उनको एडमिट करके हम वहाँ विजिट कर सकते हैं और वहाँ उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। और रेयरली अगर बहुत सिवियर है और नहीं आ पा रहे हैं तो हम होम विजिट का भी ऑप्शन रखते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। मैम ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जैसे पोस्टपार्टम ब्लूज आपने बताया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बताया, वो डिप्रेशन दोनों में क्या अंतर है? मतलब ये दोनों, वो भी एक डिप्रेशन है, ये भी एक डिप्रेशन है? सो पोस्टपार्टम ब्लूज ये सिर्फ मैं अगर बोलूंगी सिंपल टर्म्स में तो ये सिर्फ डिग्री का फर्क कि कौन कितना माइल्ड है और कौन सा कितना सिवियर है। यानी जब हम अगर शुगर लोगों को यूजुअली समझ आता है, सो शुगर अगर बॉर्डर लाइन है तो आपको डॉक्टर बोलेंगे कि आप खाने पीने का थोड़ा परहेज करें, एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, तो आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। पर अगर शुगर थोड़ा बढ़ रहा है तो थोड़ी दवाइयां देंगे। पर अगर शुगर ज्यादा बढ़ गया है, कंट्रोल नहीं आ रहा दवाई से भी और लाइफस्टाइल चेंजेस से, तो आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली पोस्टपार्टम ब्लूज जो है वो एक माइल्डर फॉर्म है कि जहाँ पे आपको काउंसलिंग से, थोड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस से आपका जो लो मूड है वो हेल्प होगा, उसको ठीक किया जा सकता है बेटर सपोर्ट से, बेबी केयर से। कई बार पोस्टपार्टम ब्लूज जो है ये फेयरली कॉमन है, 70-80% फीमेल्स में उनको मिलते हैं और ये शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, कुछ ही समय के लिए, हफ्ता 2 हफ्ते के लिए रहते हैं। एंड यूजुअली ये इस कारण होते हैं कि जो लाइफ स्टाइल में चेंज आ जाता है बहुत मेजर एक बच्चा आने के बाद। कई बार की स्लीप साइकिल सेट नहीं होती है फर्स्ट 3-4 मंथ्स तक, तो वो कभी भी रात बेरात उठ रहे हैं, वो कभी बराबर से फीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। एंड कई बार हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं बड़े, हमें बहुत सारी सलाह देते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, जो कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। शायद अभी के मॉडर्न नॉर्म्स में वो बैठता भी नहीं है, तो वो भी कई बार इसको टेंशन क्रिएट कर देता है। सो ब्लूज की बात होगी, बट डिप्रेशन में ऐसा है कि ये थोड़ा सिवियर फॉर्म है कि सब कुछ ठीक है, कई बार सब मतलब ये सारी चेंजेस आपने कर भी ली, आपको सब सपोर्टिव भी है, पर फिर भी आप वो लो मूड में से निकल नहीं पा रहे, फिर भी कॉन्स्टेंटली वो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में से जा नहीं रहे हैं। जो चीजों में पहले अच्छा लगता था उसमें आप खुश भी नहीं हो पा रहे हैं। ब्लूज में ऐसा है कि थोड़े टाइम के लिए सही कुछ चीजें आपको हैप्पी कर सकती है, बट इसमें ऐसा नहीं, और ये लॉन्गर लास्टिंग रहता है, मोर देन 2 वीक्स तक लंबा चलता है। एंड बढ़ते बढ़ते सिवियरिटी में, जैसे मैंने मेंशन किया, कई बार सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो कभी यहाँ से मैं निकल ही नहीं पाऊंगी, मैं एक अंधेरे टनल में से जा रही हूँ। सो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली का सपोर्ट, कि फैमिली सपोर्ट भी करे, उनको लेके भी आए, उनको पुश भी करे टूवर्ड्स ट्रीटमेंट, क्योंकि ये सिर्फ बात करने से, काउंसलिंग से ठीक नहीं होगा। कई बार उनको लॉजिकली मालूम है कि मैं जो सोच रही हूँ ऐसा नहीं है, बट दे कैन नॉट हेल्प इट, वो फिर भी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए हमें मेडिसिन देना पड़ता है। और जो मैंने इंसुलिन वाली स्थिति बताई डायबिटीज की, वैसी स्थिति पोस्टपार्टम साइकोसिस की है, जहाँ पे वो भी पॉइंट ऑफ रियलिटी टच छूट जाता है कि मेरे को कोई इशू, दे फील व्हाटएवर आई एम डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है मैम कि कोई एक्सपेक्टेशन रहता है मदर का कि मुझे मेल चाइल्ड चाहिए और आता है फीमेल चाइल्ड, तो ऐसे केसेस में ये ट्रिगर हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम देमसेल्व्स आल्सो एंड फ्रॉम द फैमिली आल्सो, बहुत ही स्लोली बट लकीली चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। बट हमारे सोसाइटी में अभी भी मेल चाइल्ड का जो इम्पोर्टेंस है, या मेल चाइल्ड को लेके जो एक्सपेक्टेशन है, वो काफी है, स्पेशली गांव देहातों में, थोड़े पहले वाले परिवार, मतलब छोटी जगह में रहने वाले परिवारों में, जहाँ पे अभी भी कई बार हम देखते हैं, अभी पेशेंट्स आते हैं कि 4 लड़कियां 5 लड़कियां हो गई, फिर भी वो प्रेगनेंसी कर रहे हैं बिकॉज उनको लड़का चाहिए। करेक्ट।
और ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ आदमियों का या बड़े लोगों का वो एक्सपेक्टेशन है, बट खुद जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक बेटे की माँ को जो रिस्पेक्ट या दर्जा मिलता है वो बेटी की माँ को नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल करेक्ट। अभी भी बड़े बड़े परिवारों में। तो कई बार वो एक एक्सपेक्टेशन रहती है, और वो नहीं होने से या तो कहीं गिल्ट लगता है कि मैं नहीं कर पाई, मेरे से नहीं हो पाया, या फिर एक होपलेसनेस लगता है कि यार 5-6 बेटियां हो गई, अभी तक भी नहीं हुआ, अब आगे कब हो जाए, होगा नहीं होगा, ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मेडिकली भी आप उनको, उनके गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब बस करिए, आपकी बॉडी नहीं सह पाएगी। सो वो करेक्ट। एक्सपेक्टेशन से भी जो बॉन्डिंग हमको चाहिए होती है, मदर चाइल्ड बॉन्डिंग के बारे में जो हम बात करते हैं, अटैचमेंट की बात करते हैं, वो बॉन्डिंग इससे आती है कि आप वो बच्चे की तरफ किस तरह से देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं। तो क्योंकि हर बच्चे के लिए उसकी माँ जो है या जो भी फर्स्ट केयर गिवर है जिनको वो वेरी ट्रू। देखते हैं, वो अनकंडीशनल लव होता है। तो करेक्ट। वो जो बॉन्डिंग है वो अगर रेसिप्रोकेट नहीं की गई तो मतलब माँ में तो डिप्रेसिव फीचर्स रहते ही हैं, माँ तो डिप्रेशन में रहती है, पर बच्चे पर भी हम देखते हैं कि इफेक्ट आता है, उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी फर्क पड़ने लग जाता है। स्टडीज ने यहाँ तक बताया कि इवन उनका इंटेलिजेंस जो है, इवन उनका आईक्यू लेवल जो है, वो भी इस पे डिपेंड करता है कि इनिशियल फर्स्ट ईयर में बॉन्डिंग कैसे हुई। ये एक फुल रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स है जिनको हम बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट डिसऑर्डर्स ऐसे बोलते हैं। तो वो करेक्ट। डिसऑर्डर्स, हाँ, तो वो डिसऑर्डर्स में भी कई बार ये कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। सो डेफिनेटली दैट प्लेज अ रोल। अच्छा, बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि महिलाओं को ही ब्लेम किया जाता है कि तू एक बच्चा पैदा नहीं कर पाई, मेल चाइल्ड पैदा नहीं कर पाई। तो इसके बारे में आपका एज अ डॉक्टर क्या सुझाव है? मतलब व्हाट इज द, ये चीज सी ब्लेम आई कर। थिंक ये तो आजकल स्कूलों में लकीली साइंस इतना अहेड चला गया है पढ़ाई में कि इवन 9th-10th के बच्चे आपको बता सकते हैं कि द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, की भाई लड़का होगा या लड़की होगी, साइंटिफिकली स्पीकिंग ये पूरा का पूरा स्पर्म पे डिपेंड करता है। यानी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वीर्याणु से जो निकला है, आदमी के शरीर से जिस वीर्याणु निकला है, उसमें वाई क्रोमोसोम है या एक्स क्रोमोसोम है, इस पे डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या लड़की। तो इसमें करेक्ट। औरतों का कोई हाथ हो ही नहीं सकता है सेक्स करेक्ट। में, पहली बात। दूसरी बात रही इनफर्टिलिटी की, कि बच्चा पैदा ही ना कर पाए, तो अगेन इसमें 50-50% चांसेस है, क्योंकि इनफर्टिलिटी दोनों के कई कारणों से हो सकती है। औरतों के शरीर में भी कोई कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, और आदमियों के भी शरीर में ऐसे कोई कारण हो सकते हैं जिसके कारण नहीं बच्चा पैदा हो रहा है। जब तक हम दोनों की टेस्टिंग थरली नहीं करते तब तक हम क्लियरली नहीं बता सकते कि यहाँ इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है। और कई केसेस में आजकल स्पेशली मॉडर्न कपल्स में जो दोनों वर्किंग है, अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, ऐसा देखने में आया है कि सारी टेस्ट नॉर्मल होती है, दोनों की भी सारी टेस्ट नॉर्मल होती है, बट सिंपली स्ट्रेस के कारण, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है करेक्ट। कि द बॉडी इज रिजेक्टिंग द बेबी। ऐसा हो जाता है कि एक्चुअली इनफर्टिलिटी का कोई कारण नहीं है, पर बेबी इम्प्लांट ही नहीं हो पाता है, करेक्ट। इम्प्लांटेशन ही नहीं होता है, चाहे आप मतलब नेचुरल तरीके से करो, आईयूआई करो, आईवीएफ करो, सिंपली बिकॉज हमारी बॉडी बहुत इंट्यूटिव है, हमारा वेरी ट्रू। माइंड बहुत इंट्यूटिव है। अगर उनको उसको कहीं ना कहीं इंटरनली लग रहा है कि वी आर नॉट रेडी टू बिकम पेरेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली रिजेक्शन आता है। आपकी बात एकदम सही है मैम। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आई वांट टू से कि वापी के गायनेकोलॉजिस्ट ये सेंस में बहुत ही प्रो है, बिकॉज उनका जब आईवीएफ फेलियर होता है या आईक्सी फेलियर होता है तो डेफिनेटली थर्ड टाइम वो मेरे पास भेज ही देते हैं एक बार। दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट गोना से कि आजकल अपने पास इतने सारे हमारे पास इनफर्टिलिटी के लिए रेफरेंसेस आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के, वेरी क्योंकि ये रेकग्नाइज्ड कॉज है सब तरफ से कि स्ट्रेस इज अ मेजर कॉज। फिर कई बार फिर क्या हो जाता है ना कि देन द कंसेप्शन का जो ट्रायल है वो एकदम बाय द कैलेंडर चलने लग जाता है। तो करेक्ट। इतना प्रेशर रहता है बोथ पार्टनर्स के ऊपर टू परफॉर्म, कि वो प्रेशर के कारण भी क्वालिटी ऑफ स्पर्म बोलिए, इम्प्लांटेशन की क्वालिटी बोलिए, द प्रिपरेशन ऑफ द बेड बोलिए, ऑल ऑफ दैट गेट अफेक्टेड। क्योंकि हमको मालूम है स्ट्रेस में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है, वो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन आपको प्रिपेयर कर रहा है फाइट या फ्लाइट करने के लिए। अब अगर आपकी बॉडी यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो रही है या भागने के लिए, तो वहां क्यों बच्चा रखेगी? बॉडी को भी पता है कि बच्चा अगर रखेंगे तो पूरे रिसोर्सेज वहां यूज हो जाएंगे, और आप बॉडी को रेडी कर रहे हैं फाइट फ्लाइट के लिए। सो करेक्ट। दिस बिकम्स अ मेजर मेजर इशू। सो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड, सभी एक करेक्ट। दूसरे से संबंधित है। हाँ जी।
करेक्ट मैम, हमने बात की पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम साइकोसिस, प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। और अन्य क्या क्या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं महिलाओं के जीवन में, और कौन सी बीमारियां हो सकती है महिलाओं के अंदर? महिलाओं के अंदर वैसे हमने रिसर्च में ऐसा देखा है कि हमारे जो साइकेट्रिक इलनेसेस है उसमें से जो डिप्रेशन और एंजाइटी के डिसऑर्डर्स है वो यूजुअली महिलाओं में ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। दिस इज अगेन सिंपली बिकॉज उनका जिस तरह से नेचर है, मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग वो जिस तरह से डिजाइंड है, दे आर मोर प्रोन की डिप्रेशन एंजाइटी हो। अगेन हार्मोन्स भी उस तरह से है जिसके कारण डिप्रेशन एंजाइटी हो। प्लस उनको जैसे कल्चरली रेस किया जाता है कि भाई घर की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, पर कोई भी बड़ा क्राइसिस आया तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कई बार ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी हो जाता है जिसके कारण वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स बॉडीली सिम्टम में भी निकलता है, तो जिसको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये भी हमको फीमेल्स में ज्यादा मिलता है। वो दिखाता है कि हमारे माइंड और बॉडी में जो कनेक्शन है, तो हमारे इलनेसेस भी उस हिसाब से चलते हैं। अगर आपका माइंड रेस्टलेस है, बॉडी रेस्टलेस रहेगी। कई बार हमारे पास यंग लड़कियां बहुत ऑफन आती हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, या जिनको पेरेंट्स लेके आते हैं, जो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, सारी टेस्ट बार बार नॉर्मल आ रही है, पर या तो फिट जैसे लक्षण है या बेहोश हो रहे हैं, या ना उनको अनयूजुअल बात करना उनसे बंद हो गया, चलना अचानक बंद हो गया, बट फिजिकल एग्जामिनेशन में सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आती है। और तब हमको रियलाइज होता है कि कोई ना कोई बात है जो उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, जो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठे वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और वो घबराहट के कारण, वो डिस्टरबेंस के कारण बॉडी में सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं। तो उनके जो सिम्टम्स है वो एकदम जेन्युइन होते हैं, सच में वो बोल नहीं पाते, सच में वो चल नहीं पाते, पर ये दिक्कत नर्व से नहीं पैदा होती, दिमाग की गड़बड़ी से पैदा होती है। ऑफ कोर्स अगर मैं ट्रॉमा की बात करूं या सेक्सुअल वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करूं, तो वो भी हमको मालूम है कि फीमेल्स में ज्यादा होता है। फ्रॉम अ वेरी यंग एज दे आर वेरी प्रोन की उनके अगेंस्ट मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप्स, ये सारी चीजें होती हैं। कई बार इंसेस्ट भी होता है। कई बार हमने देखा है अनफॉर्चुनेटली कि क्लोज फैमिली मेंबर्स या जान पहचान के लोगों के थ्रू ही होता है। एंड हाँ, लड़के लड़कियां दोनों इस चीज को प्रो है, बट परसेंटेज अनफॉर्चुनेटली दोनों में ही अनफॉर्चुनेट है, पर परसेंटेज में हमने देखा है कि लड़कियों में ज्यादा होता है। तो वो जो ट्रॉमा है वो भी आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होता है, वो भी उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने में, कैसे लाइफ के साथ डील करते हैं, कितना घबरा जाते हैं जल्दी, कितना होल्ड हो जाते हैं, उसमें हमें दिखता है। सो अगेन डिप्रेशन, एंजाइटी वहां पर भी हमको ज्यादा दिखता है। देन जो हम बोलते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस यानी शादी के बाद भी हम डोमेस्टिक वायलेंस बहुत देखते हैं कि कई बार रूरल सेटिंग्स में वगैरह स्पेशली हमने देखा है कि हस्बैंड दारू पीते हैं, कुछ नशा करते हैं दूसरा, और फिर घर पे आके झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी केसेस में यूजुअली महिलाओं पे ही अत्याचार ज्यादा हमें देखने मिलता है। उसके कारण भी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम कहते हैं, पीटीएसडी या डिप्रेशन या एंजाइटी, ये हमको महिलाओं में ज्यादा ऑफन मिलता है। प्लस एक बीमारी है ओसीडी, जिसे हम कहते हैं, अगेन एंजाइटी डिसऑर्डर के स्पेक्ट्रम में आती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका भी परसेंटेज फीमेल्स में हमें ज्यादा मिलता है, जहाँ पे कोई भी एक ही चीज दोहराने का उनको आदत लग जाती है, कोई भी एक चीज दिमाग में सुई के कांटे जैसे अटक जाती है। देखा जैसे क्लीनिंग का बहुत हो जाता है उन्हें, कि कोई सरफेस क्लीन किया फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं लगता कि क्लीन है, तो बार बार हाथ धोते रहना, बार बार साफ सफाई करना, इस हद तक कि वो अपने दिनचर्या नहीं कर पाते हैं, रोजमर्रा की काम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमें फीमेल्स में ज्यादा ऑफन मिलता है। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि जो सेकंड टप्पा आता है मिड लाइफ में या लेटर लाइफ में, जहाँ पे हमारी माहवारी खत्म होने लग के आसपास आ जाती है, वहां पे हमें प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल अगेन ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं, अगेन बिकॉज हार्मोनल चेंजेस के कारण। तो वहां पर फिजिकल सिम्टम्स भी रहते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस आ जाना, ब्लोटिंग लगना, ड्राइनेस लगना वजाइना में, साथ में मूड चेंजेस हो जाना, लो लगना, चिड़चिड़ापन लगना, एंजाइटी होना। तो ये सारे ही हमें चैलेंजेस फीमेल्स में दिखते हैं वेरी ऑफन। करेक्ट मैम।
मैम कई कई बार अभी जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है मार्केट में, सबके पास इंस्टाग्राम के अकाउंट है, सबके पास स्नैपचैट है, तो ये क्या इम्पेक्ट छोड़ता है महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर? वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत रेलेवेंट है जीत अभी के लिए, क्योंकि अभी हर एक जन जो है वो एक मिनी सेलिब्रिटी है इन देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ वेरी ट्रू। सोशल मीडिया। क्योंकि उनके इतने फॉलोअर्स हैं और वो और उसको बढ़ाने के लिए एवरीडे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर वो वर्क करते हैं। नॉट करेक्ट। नेसेसरी कि एवरीबडी ऑन इंस्टाग्राम इज यूजिंग इट फॉर वर्क। जैसे आप आज इंस्टाग्राम लाइव लाइव फॉर वर्क कर रहे हैं, बट ऐसी कई महिलाएं हैं, कई लड़कियां हैं जो अपनी आइडेंटिटी उसको लिंक कर लेते हैं इंस्टाग्राम को, और फिर करेक्ट। उनको कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने लोग उनके इस पे कमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका पूरा टाइम, अटेंशन, पोटेंशियल सब उस तरफ ये रहता है। उसके कारण बॉडी इमेज इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि वो खुद को एक सर्टन फिल्टर में देखना चाहते हैं और खुद के बारे में एक सर्टन आइडिया होती है। वैसे भी करेक्ट। हमारे सोसाइटी में फीमेल्स को जितना ग्लैमराइज किया है और जितना उनके ऊपर, मतलब पहले से कि गोरी हो, सुंदर हो, पतली हो, ऑल ऑफ दोस डेफिनेशन, तभी वो ऑफ अ गुड गर्ल वाले जो रहते हैं, तो उसमें खुद को फिट करने के लिए कांस्टेंट कंपैरिजन भी चलते रहते हैं। उसके लिए कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं में ईटिंग डिसऑर्डर्स भी, जो मैं मेंशन करना भूल गई, बहुत कॉमन होता है कि जहाँ पे कम खाते हैं या अगर ज्यादा खा लिया, इमोशनल ईटिंग कर ली, तो फिर खुद ही उंगली डाल के उल्टियां करने लगते हैं, ताकि उनका एक सर्टन बॉडी वेट या बॉडी इमेज बनी रहे। इस हद तक भी हो जाता है कि वो क्लिनिकली फिजिकली प्रॉब्लमेटिक होने लगता है, कि उनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उनका वेट लॉस इतना सिवियर हो जाता है कि उनको बाकी फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। पर उनको फिर भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ, या मैं, मेरा मतलब कोई एक मेरा पार्ट है जो उतना अच्छा नहीं है। और इसमें सोशल मीडिया बहुत इस चीज को और ऐड करता है, बिकॉज सोशल मीडिया में देयर इज कांस्टेंट कंपैरिजन। हम भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया इज फुल ऑफ वेरी स्मॉल स्नैपशॉट्स ऑफ आवर एंटायर लाइफ। आज अगर हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, आपको और मुझे पता है कि ये 1 घंटा प्लान करने के लिए हमारा पिछला 1 महीने का कितना वेरी ट्रू। सारा कोऑर्डिनेशन और टाइम गया है, और इसमें कितनी बार हमें कैंसिल करना पड़ा है, कभी आपका कुछ, कभी मेरा कुछ। बट जो ये देख रहा है उनको लगा वाह हाउ स्मूथली ये लोग कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज द करेक्ट। कमाल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडिटिंग। बट किसी ने अगर कोई पोस्ट डाला है, वो पोस्ट भले ही 2 मिनट का हो, उसके पीछे मेहनत कितनी लंबी है या उसके करेक्ट। आउटपुट कितना स्ट्रगल है, वो नहीं दिखता है किसी। या करेक्ट। ये 1 मिनट का हैप्पीनेस है, बचा हुआ टाइम वो लोग क्या चैलेंजेस से डील करें वो हम भूल जाते हैं। सो देयर इज दैट कांस्टेंट कंपैरिजन कि यार वो तो सब कर रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, वो पार्टीज कर रहे हैं, उनके ये फोटो आ रहे हैं, मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ, या मैं तो कुछ। तो ये यूजुअली इसका इम्पैक्ट हमने देखा है सभी टीनेजर्स पे तो होता ही है, दैट एज वेरी इज ट्रू। वन। बट जनरली फीमेल्स पे ज्यादा हो जाता है कई बार। हमने देखा है जो हाउसवाइफ्स है या एम्प्टी नेस्टर्स हैं, बच्चे स्कूल चले गए, काम हो गया है, घर का सब काम हो गया है, और अभी हम स्क्रोलिंग करते बैठे हैं, फिर हम कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर देख रहे हैं, तो फिर उससे कंपैरिजन हो रहा है, फिर उससे चीजें बढ़ रही हैं। या करेक्ट। बच्चे अभी बड़े होके अपने अपने इस पे चले गए, हम रिटायर्ड है आजकल। देर आर टू स्पेक्ट्रम्स ऑफ स्क्रीन एडिक्शन, या तो छोटे बच्चे बहुत एडिक्टेड है, या बुजुर्ग बहुत। हमारे एल्डरली जो है वो फुल एडिक्टेड है, पहले के जैसे ऐसे ऐसे करके बैठे रहते हैं सब लोग वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। इंस्टाग्राम की जगह। बट वही होता है कि यू गेट अननोइंगली सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ दिस। फ्रॉड में भी आप पढ़ सकते हो, स्कैम्स में पढ़ सकते हो, साइबर बुलिंग हो सकता है, सेक्सुअली आप हैरेस हो सकते हो ऑनलाइन। ये सारी ही बहुत डेंजरस चीजें हैं जिसके बारे में हम अनअवेयर रहते हैं। हमें सिर्फ वो चकाचौंध दिखता है और उस चक्कर में वी एंड अप सफरिंग। सो वेरी ट्रू। मेजर इम्पैक्ट है सो एक फीमेल्स। बहुत ही अच्छा गुजराती कमेंट है इसके लिए, दूर थी डूंगरा रड़ियामणा हो, दूर से जो सब चीजें दिखती है वो अच्छी होती है। सो इट इज वेरी ट्रू, सोशल मीडिया हैज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। तो महिलाओं को इसके बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैम आजकल देखा जाता है मेरे पास रूटीन ओपीडी में, मैं और तवलीन रूटीन में देखते हैं पेशेंट्स, तो फीमेल का अल्कोहलिज्म, फीमेल का स्मैक लेना, हेरोइन लेना, कोकेन लेना, एक्सेसिव अमाउंट में कैफीन लेना, बहुत केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? सी आई थिंक 2 3 थिंग्स। एक तो इजी अवेलेबिलिटी, पहले तो अवेलेबल आजकल बहुत इजीली है एज कम्पेयर टू पहले। दूसरा लेस टैबू। पहले थोड़ा सा टैबू था ये सब चीजों का, तो पहले थोड़ा शर्म आता था, डरते थे, छुप छुप के करते थे, उतने रिसोर्सेज नहीं रहते थे। आजकल इट्स वेरी कूल
एंड वेरी ओके कि आप इवन एज अ फीमेल आप स्मोक करते हुए गाड़ी चला रहे हो या आप सिगरेट की शॉप पे जाके सिगरेट ले रहे हो. And Correct. generally also, even our generation, your generation, generation junior to us, they don't feel anything about it being just a male's domain. It's an equal rights thing. ऐसा सबको लगता है कि भाई उनको अगर चूज कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं. तो सब्सटेंस का प्रॉब्लम जनरली भी काफी बढ़ रहा है, बट Correct. फीमेल्स में और हाईलाइट हो रहा है जस्ट बिकॉज अब उसके बारे में उतनी हिचक नहीं रह गई है पहले. Correct. तो वो उस कारण से भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है. प्लस एक्सेसिव अमाउंट में कैफीन लेना इसीलिए भी कई बार हम देखते हैं क्योंकि इफ यू वांट टू मैच योर वर्क लाइफ, सी एवरीथिंग सेड एंड डन, जब हम वर्क फोर्स में होते हैं, स्पेशली बिकॉज अभी इस साल थीम इज वर्कप्लेस मेंटल हेल्थ. फॉर अ फीमेल, even if you're a full-time dedicated worker, you are still mentally doing 10 chores at home also. Whereas for a male, because the way their mind is designed, they are very focused at just the work at hand. For example, अगर आज तबलीन यहाँ बैठी है या मैं आपके साथ बैठी और हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बैक ऑफ द माइंड में हमारे चल रहा है कि इसके बाद नेक्स्ट क्या रहने वाला है, बच्चे का घर में ये करना है, उसका क्लास है, उसको भी भेजना है, इतने बजे मेरा खत्म होना चाहिए, वॉट एवर इट इज. Correct. For you, your wife might be taking that mental load. I'm not saying that men don't do it, but your mental Very load true. is more focused on what is here and now. What is here and now. Our 10-20% brain is also working on that. So, कई बार caffeine helps you in this multitasking. A Correct. lot of females and males both find that during their study time या college उन्होंने वो they get hooked on to it, and then वो gradually, because we know caffeine is one of the most addicting substances. तो अगेन धीरे धीरे बढ़ते जाता है, आपकी क्वांटिटी बढ़ती है, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मिल्क का कंटेंट कम होता है, कॉफी का स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है. सो ऑल ऑफ दैट स्टार्ट्स एडिंग अप. सो एक्सेसिव कैफीन हैज, एंड ऑल्सो एडिशनली व्हाट हैपेंस इज कैफीन के साथ आपकी डाइटिंग होने लग जाती है, बिकॉज यू कैन जस्ट कीप चगिंग कॉफी, यू डोंट रियली नीड दैट मच फूड, एंड यू कैन स्टिल वर्क लाइक 20 hours a day. 4 घंटे की नींद में आपका हो जाएगा. एंड तो एडेड ये इस कि आप दिखने को स्लिम थिंग दिखोगे क्योंकि आपने खाया ही नहीं है, भूख लगी ही नहीं है, टाइम भी नहीं है खाने का, और कैफीन से आपका मेटाबॉलिज्म इतना हाई रह रहा है कि खाना पूरा ब्रेक डाउन रहा है. इट्स नॉट अ हेल्थी वे ऑफ लूजिंग वेट, इट्स अ वेरी सिकली वे ऑफ लूजिंग वेट. यू कैन सी द डिफरेंस, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू गेट. एंड मेल्स वर्सेस फीमेल में रिसेप्टर लेवल पे अगर मैं जी बात करूं बायोलॉजिकल लेवल पे, तो हमको मालूम है कि भले ही मैं सोशली इक्वालिटी ले आऊं, बायोलॉजिकल लेवल पे substances, कोई भी substances tend to do more harm to a female body than a Very male. true. क्योंकि जो रिसेप्टर की डेंसिटीज है वो अलग अलग है, हमारी रिसेप्टर को रिएक्शन अलग अलग है. So supposing you are having 4 drinks and I am having 4 drinks, I might pass out and have a blackout in 4 drinks, whereas 4 drinks might only take you to a certain level of happiness or highness, but I will black out even sooner than you because मेरा बॉडी का मेटाबोलाइज करने का ही एंजाइम कम है अल्कोहल का, और रिसेप्टर्स उतने हैं, इसलिए मेरे पूरे सैचुरेट हो जाएंगे. Correct. And of course all of this also depends on an individual basis. अगर ऐसा कोई है फीमेल जो बहुत पहले से रेगुलरली अल्कोहल ले रहे हैं, उनकी डिपेंडेंसी लेवल पे अलग रहेगा वर्सेस अ मेल जो अभी अभी चालू कर रहा है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु स्टार्टेड एट द सेम एज. जब मैं ये कंपैरिजन आपको बता रही हूँ बिकॉज बायोलॉजिकली हमारी बॉडी इज डिफरेंटली वायर्ड है, राइट? Correct. So when we talk about equality, it is about equal opportunities, but with the same amount of skill set that each of us can have and use. तो वो सब्सटेंस के बारे में भी है. आजकल सोशल ड्रिंकिंग हैज बिकम वेरी नॉर्मल, आजकल इट इज एक्सेप्टेबल, इट्स ओके, बट नोइंग योर ओन इंडिविजुअल लिमिट, whether you're a male or you're a female, helps you be safe, helps you be in ये. आजकल another thing is vape. Vape is a much more cooler way of using Very it. true. आप पर्स में रख सकते हो, 2 पफ लेके वापस पर्स में चला जाता है, स्मेल नहीं आती है, फ्लेवर्स आते हैं उसमें कई सारे, मतलब that's designed for Yeah, females. I have seen so many females smoking it. Yeah, and they feel that it is much more safer because it's not a cigarette, because you don't have to go out, and because
ऑल्दो उसमें ज्यादा निकोटीन ज्यादा है, Very इट इज true, very मच true. मोर हार्मफुल. लाइक बोथ ऑफ देम आर इक्वली हार्मफुल, बट सिगरेट्स का हार्म अलग लेवल पे है. सिगरेट विल गिव यू आर मोर कार्सिनोजेनिक, लंग कैंसर, ऑल ऑफ दैट. निकोटीन विल कॉज यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ हार्म because higher levels of nicotine without even realizing. In fact, taboo नहीं होने के कारण you end up at the end of the day consuming more. Cigarettes आपका restrict हो जाता है क्योंकि आपको public places में नहीं smoke कर सकते, अलग जाना पड़ेगा, अलग से वो बुझानी पड़ेगी. All of that तामझाम is there with that. Correct. Plus designer drugs अभी जो आ गए हैं, वो they make you sound very cool. You want to try everything. आजकल teenagers में, and but sometimes they can be very harmful because at the end of the day, if you end up taking a drug that causes you a blackout and you completely forget what happened that day, people can take undue advantage. However much I would like to talk about, you know, opportunities and equality, and I do believe in that, but at the same time, you have to realize कि आप vulnerable हैं as a female. कल चल के अगर आपके साथ unknowingly sexual assault या कुछ भी होता है, उसका consequence आपकी body में definitely रहेगा versus a male की body. Similar things can happen with a male. I'm not saying it won't happen, but Correct. more chances of it happening with a female with more dire consequences. हम सबने मूवी देखी होगी संडे. संडे नाम की मूवी आई थी जहाँ पे रोपिनारोल करके डेट ड्रग इन्होंने यूज किया था Very true. प्रोटोगनिस्ट के इसमें. Luckily, in that movie, it was shown that she was saved and nothing happened with her. But it is a very common occurrence that can happen. So, first of all, I would advise to definitely stay away from substances because there are much better ways to enjoy life, have a thrill, and enhance your focus and have a better balance. And even if you are indulging in any substances, know your limits. कहाँ आपको लिमिट में रहना है, कहाँ ओवरलोड आप हो रहे हो. Do not make it a habit, do not make it a compulsion, do not make it a coping technique. कि भाई I'm sad, I'm angry, that is why I'm drinking. Do not associate it with fun times कि I cannot have fun without it. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. And always make sure that you are with people who you trust, who you're comfortable with, and don't let anybody else make a drink for you, even if it's a coffee at a party by an unknown person. I mean, that Correct. would be a very straight up advice for any female out there. So, Correct. substance use तो बढ़ ही रहा है और unknowingly बढ़ रहा है because it has unfortunately become a very cool thing. Correct. So, मैम और एक एडिक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटोलॉजी है, जो टमी टक है, पीपल डू एन नंबर ऑफ थिंग्स टू लुक गुड, तो ये भी एक एडिक्शन जैसा है आपके हिसाब से? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? so again, I would say more than an addiction, it is more of a body image issue. It is also somewhere linked to your own self-confidence, your own identity crisis. A lot of times, if there are some interpersonal conflicts, relationships may, life may going on, people unknowingly related to the materialistic thing. If I look this figure, my marriage will improve. Correct. If I have better boobs, my sexual life will improve. Or Correct. if I have a certain nose, I will be able to marry in a certain way. So कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों ने उनको बार बार ये चीजों के लिए बोला होता है, टोका होता है, इसलिए उनके दिमाग में होता है. कई बार उनको खुद से satisfaction नहीं होता है about the way they look. कई बार it is about comparison with other people. That is why. For a small percentage, I think it can be an addictive thing also that they want to make sure कि वो perfectionist होते जाते हैं. More than addiction, it is probably an OCD kind of thing कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, उस तरह का भी चीजें हो सकती हैं. But the root cause in a lot of times, again, जैसे gynecologist infertility के लिए भेजते हैं, कई बार plastic surgeons भी हमारे पास भेजते हैं because if they realize that the same person is coming again and again for a correction that is not required, और जो लग रहा है सिर्फ यहाँ पे मेरा गाल ज्यादा है, यहाँ पे मेरा नाक, so then they send it कि this is a image issue कि उनको समझ में नहीं आ रहा है. एंड कई बार वो we see that underlying कोई डिप्रेशन है, underlying कोई एंजाइटी है, उसके कारण वो ये चीज में हो रहा है. So when you're satisfied, content and happy in other things in life, usually you're happy with this and you will use healthier ways to stay fit. Correct. Because आपका शेप, जैसे आप आपका नेचर नहीं बदल सकते हैं, वैसे आप आपका शेप नहीं बदल सकते.
right? Correct. Your shape or your structure is what you are born with. You can only be more healthier, you can be fitter, you can definitely work on your weaknesses and improve your day. करेक्ट मैम, कोई एक लास्ट मैसेज जितने भी महिलाएं हमें देख रही है आज सुन रही है उनके लिए? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं बोलूंगी महिलाओं के लिए कि सेल्फ केयर पे फोकस करिए। आप कोई भी कहीं पर भी हो, किसी भी उम्र में, महिलाओं के लिए नोइंगली अननोइंगली वी ऑलवेज पुट आवरसेल्व्स लास्ट। तो खुद के सेल्फ केयर पे काम करिए। इफ यू वर्क टुवर्ड्स योर बेटर हेल्थ, वेदर इट्स फिजिकल हेल्थ, वेदर इट्स मेंटल हेल्थ, आप फिट रहेंगे तो आप आपके परिजनों का, लव्ड वंस का ज्यादा बेहतर ख्याल रख पाएंगे। And self-care does not mean being selfish. Whether you're a mother, whether you're a daughter, whether you're a wife, whether you are just a single person, self-care is not being selfish. Self-care is important. सेल्फ केयर के लिए 1 घंटा भी खुद के लिए आप हर रोज अगर निकालेंगे तो इट विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू मैनेज ऑल योर डिफरेंट इश्यूज। वो 1 घंटा आप एक्सरसाइज में निकाल सकते हैं, आप हॉबी में निकाल सकते हैं, आप कोई ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ बात करने में निकाल सकते हैं। और अगर चीजें हेरवायर हो रही हैं तो इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोफेशनल्स, एनीबडी। we are used to being multitaskers and we want to do everything by yourself, तो हम help मांगते नहीं हैं। So be comfortable in asking for help and take care. Correct. Thank you so much, ma'am. That was very elaborative from your side, and we enjoyed a lot. Tavleen, you can go with the ceremony. Thank you so much. Thank you, Jim. Thank you so much, Abha ma'am, for such an insightful session. I think we covered each and every area of a woman's life and all the effects that those areas can have mentally on a woman. And amazing session. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for such an amazing questioning round that we had. And if our viewers are looking forward to get in touch with us, get in touch with Abha ma'am, they will find the appropriate links in the bio. Thank you so much. Thank you.